Good morning, students. As I told you in the previous class, today we are going to start with motion in vertical circle. That means vertical circular motion, right? और आपके NCERT बुक में ये पर्टिकुलर आर्टिकल मोशन इन अ प्लेन से अलग वाले टॉपिक में होगा. When you are solving Marvel book, Marvel में दो अलग अलग sections हैं. One is UCM, another is non-UCM, right? UCM means the particle is moving along the circumference of a circle in clockwise or anti-clockwise sense in horizontal manner. मतलब ये UCM हो सकता है और ये UCM नहीं भी हो सकता है. ये UCM हो भी सकता है और ये UCM नहीं भी हो सकता है. For example, when I switch on the fan, right, and if I think about the particle which is situated on the tip of the blade, as a whole, what type of motion it is performing? The fan. Rotational motion. So can you see the particle on the tip of it is performing circular motion? So when I just switch on the fan, the particle is speeded up. That means it is accelerated motion. But एक particular time limit के बाद it will keep going with constant speed. That means it becomes uniform circular motion. Means what? Horizontal circular motion. Maybe CM, maybe UCM. But vertical circular motion can never be UCM. Can never be UCM. अगर बेटा ये बेंच को मैं रेफरेंस लाइन गिनता हूँ, ये बेंच को, और ये मेरा मैरीगो राउंड है, सपोज फेरिस व्हील, ओके, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर जंक्शन ऑफ टाइम पे यू आर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड, और एक पर्टिकुलर टाइम पे यू आर फारदेस्ट फ्रॉम द ग्राउंड. दैट मीन्स हियर योर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड हियर योर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. So if your potential energy is minimum, as per law of conservation of mechanical energy, kinetic energy is maximum, and therefore kinetic energy is minimum. Yes or no? So at the bottom, because potential energy is the least, kinetic energy is the most, and at the top, because the potential energy is the most, therefore kinetic energy is the least. इसका मतलब ये हुआ कि vertical circular motion is never UCM. Do you agree with me? Vertical circular motion can never be UCM. मैं नॉन स्टॉप अराउंड 1 आवर बोलूंगा, नॉन स्टॉप. आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, और मैं जो पूछ रहा हूं वो खाली ध्यान से आंसर करो, राइट? टोटल फोकस ऑन द बोर्ड. द पार्टिकल is moving along the circumference of a circle of radius r, but in vertical manner. That means the particle is performing vertical circular motion. The particle is performing vertical circular motion, right? This becomes vertical line. This becomes vertical line, and this particular line becomes horizontal line. अब बेटा एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो. जब हम लोग सर्कुलर मोशन से स्टार्ट कर रहे थे, हम लोगों ने इसको रेफरेंस लाइन बोला था, याद है? हम लोगों ने इसको रेफरेंस लाइन बोला था, लेकिन यहाँ पे इसको रेफरेंस लाइन नहीं बोलना है, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन यू आर सेइंग द पार्टिकल इज एट द लोएस्ट पॉइंट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इटसेल्फ यू आर सेइंग दैट द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. अगर ये बेंच को मैं रेफरेंस सपोर्ट गिनता हूं, रेफरेंस प्लेन गिनता हूं, फिर मैं इसको रेफरेंस लाइन गिनता हूं, राइट? इसको मैं रेफरेंस लाइन गिनता हूं, और ये मेरा वर्टिकल सर्कल हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन पार्टिकल इज एट लोएस्ट पॉइंट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट. आर्ग्यूमेंट समझा? इसका मतलब इन वर्टिकल सर्कल दिस इज नॉट द रेफरेंस लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन. Now this also is the reference line, because when I am holding this particle, let us take this example itself. A stone is tied with the help of a string. When I am about to start with the experiment, it can be here, and only here. If it is at rest and if I have not started with the experiment, can I say it is here, and only here? Can I hold it and say stay there, statue? No. Then it will oscillate for some time, and ultimately it will come to rest here only. So when I say I start, the particle is here. So this is the reference line with respect to which angle is to be measured. This one. अब एकदम ध्यान से सुनो. Right now, what is the angle with respect to this line? You are going to hold this. You are going to hold this. Come here.
come here. This is the line with respect to which angle is to be measured. That means if this is the string, right, and if this is the body, this one is the body, then it is covering 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150 degree, 180 degree, 210 के बदले 150 बोलो. उसका रीजन बोलता हूं. अगर मैं बोलता हूं कि ये पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है, मैं, तो ये सेम पार्टिकल आप लोगों के लिए एंटी क्लॉकवाइज है फिलहाल. मैं बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आप लोगों के लिए क्लॉकवाइज है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है और 90 डिग्री कवर कर रहा है. आप लोग बोलोगे नहीं नहीं सर, ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और 90 डिग्री कवर कर रहा है. इसका मतलब मैं 0 से 90 ऐसे गिनता हूं और इसको मैं क्लॉकवाइज बोलता हूं. आप इसी को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो. ये 0 to 180 मेरे लिए क्लॉकवाइज हुआ, आपके लिए 0 to 180 एंटी क्लॉकवाइज हुआ. इसका मतलब दिस इज क्लॉकवाइज फॉर मी, राइट, द सेम वाज इन एंटी क्लॉकवाइज फॉर यू. मैं बोलता हूं नहीं नहीं स्टूडेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज है. आप लोग बोले नहीं सर ये क्लॉकवाइज है. कैन वी से बोथ ऑफ अस आर राइट? Because you are on the other side of this experiment. Suppose this is Ferris wheel, right? Then you are on the other side of the Ferris wheel. I am on this side of the Ferris wheel, right? You are on this side of merry-go-round. I am on this side of merry-go-round. That means your particular argument also is correct. So back here, इसकी counting कैसे होती है? Angle की 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 150, 120, 90, 60. Are you getting my point? मतलब ये जो 210 है ना, उसको मैं 150 गिनूंगा. 360 माइनस जो 240 है उसको मैं 120 गिनूंगा. Moral of the story. Moral of the story. When the particle is here, what is its height from this reference line? Height. Height का मतलब ये होता है कि if this is the sphere, if this is the sphere, सपोज मेरे पास ये इरेजर के बजाय एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल, छोटा सा, और उसका सेंटर ये है. then what is the distance of the center from this line? Distance of a point from the line, if it is on the line, is 0. इसका मतलब this is the reference line with respect to which what am I going to measure? With respect to which height is measured, बराबर. And once I measure the height, later it is going to help me to find out potential energy. ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन हो गया, ये वाला, बराबर. और ये मेरे पास दूसरा रेफरेंस लाइन हो गया, ये वाला. So if I have two scales, this is one scale which I am going to put here, Please take it. Right? This is the scale, right? Hold this, please. Hold it. तू इधर ही बैठ. इधर से पकड़. हाँ? This is the scale which I am going to put here, and this is another scale which I am going to put here. So this is a reference line with respect to which what am I going to measure? Height, right? And this is the reference line with respect to which? Perfect. Thank you. Logic समझा बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि right now the particle is here, right? Then the particle is going to go here. Then the particle is going to go here. Then the particle is going to go here. Then the particle is going to come back. Somewhere the particle will come here. इसका मतलब मैं यहाँ पे 4 positions ले रहा हूँ. This position is called lowest, and lowest is unique. Lowest position एक ही होता है. अगर ये थोड़ा भी right side पे या थोड़ा भी left side पे तो आप उसको lowest नहीं बोल सकते हो. ये हो गया highest. क्या ना, हाईएस्ट भी एक ही होता है, सुपरलेटिव डिग्री. ये हो गया हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल 2 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बिकॉज इफ दिस इज एट द हाइट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, देन दिस इज आल्सो एट द हाइट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल. माइंड यू, द हाइट इज ऑलवेज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन. मैं जो ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो. उसके बाद में मैं वेक्टर्स बनाऊंगा. आप लोगों को एकदम अच्छे से पता है कि कोई इक्वेशन सेट करना है तो वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेक्टर्स, बराबर. रेफरेंस लाइन समझा? व्हाट इज दिस रेफरेंस लाइन स्टूडेंट्स? दिस इज द रेफरेंस लाइन with respect to which what is measured? Angle is measured. Yes or no? With respect to which angle is measured. यहां तक समझा? Super sure. Let me call this position as A. Unique. Let me call this position as B. मैं चाहता तो लाइन से भी जा सकता था ABCD.
लेकिन मैं जानबूझ के यूनिक पोजीशंस के हिसाब से जा रहा हूँ. दिस इज द यूनिक मोस्ट पोजीशन, लोएस्ट एक ही हो सकता है. दिस इज द नेक्स्ट यूनिक मोस्ट पोजीशन, हाईएस्ट भी एक ही हो सकता है. राइट, दिस इज सेमी यूनिक. राइट, एक इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है. अब मेरी मर्जी में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, स्टूडेंट बढ़ रहा है सर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या तो जा रही हूँ, नो प्रॉब्लम. आप ए से सी डैश जाओगे, मैं ए से सी जाऊंगा. एंड फाइनली दिस पोजीशन इज कॉल्ड एनी पोजीशन, random position, neither lowest nor highest nor horizontal. Unique, not unique but as good as unique. And this is random position. Particle इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है. Yes or no? Have you understood up to this? So what is the horizontal line? Horizontal line is not the line passing through the diameter of the circle, mind you. It is tangent to the circle. So the lowest possible line which I have shown is reference line with respect to which, and the vertical line is passing through the center. That means that is matching with the diameter, and that is the line with respect to which theta is measured. Right, now one by one. This is the center of the circle, of course. This is the center of the circle. Who is this? This is the length of the string, which is the radius of the circle also, as you said. So throughout my article, throughout, जब मैं length of the string बोलता हूं, मैं उसको radius of the circle भी बोल सकता हूं. मतलब ये आपकी मर्जी. आपको length of the string लिखना है, आप symbol L लिखो, और आपको radius of the circle लिखना है, आप symbol R लिखो. Yes or no? Okay. Over here, now I'm writing the force equations. Few very important points. Can I say weight will come into action? Weight का मतलब mg, right? Weight of the particle is mg. That means can I say this is acting vertically downwards always? X vertically downwards always. Do you agree with me? Weight always acts vertically downwards. दूसरा कौन सा फोर्स आएगा? फोर्स की बात कर रहा हूं. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. परफेक्ट. टी इज टेंशन. हाउ इज टेंशन एक्टिंग? सोच के बोलो बेटा. ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग. ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग. अलोंग द स्ट्रिंग. और ये फोर्स स्टार्ट कहां से होगा? बिकॉज अलोंग द स्ट्रिंग ये भी होता है और अलोंग द स्ट्रिंग ये भी होता है. So can I say along the string should be this? It should always start from the mass. मतलब मास इधर है तो टेंशन ऐसे हुआ. मास इधर है तो टेंशन ऐसे हुआ. मास इधर है तो टेंशन ऐसे हुआ. Right? So tension is always acting along the string. Acts along the string always. Right? Starting from whom? Starting from the body. बराबर? Starting from the body. इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द मास. ये दूसरा फोर्स हो गया. इज इट परफॉर्मिंग सर्कल? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज कंपल्सरी. सो तीसरा फोर्स कौन सा आएगा बेटा? एफसीपी. इज इट सेंट्रीपिटल फोर्स? हाउ डज इट एक्ट? इट एक्ट्स ऑलवेज along the radius towards the center. Now, most important, this force is not coming from outside anywhere, right or no? It is present within the system. मतलब ये बाहर से नहीं आता है. This force is present within the system, right? कौन से forces within the system present है? कौन से forces within the system present है? पहला वाला और दूसरा वाला. पहला वाला और दूसरा वाला. मतलब ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे. यस और नो? ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे. हॉरिजॉन्टल सर्कल में वेट वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग. याद करो, ये बेटा ऐसे जा रहा था ना. मैं बोल रहा था a stone is tied to the string and the necessary centripetal force is provided by tension. हम लोग सिर्फ टेंशन बोलते थे. हम लोग इधर बोलते थे क्या कभी कि mg is providing और mg also is contributing in this. But when you talk about this, it is vertical body. अब सोचो, ध्यान से देखो, अगर ये बॉडी को मैंने प्रॉपर स्पीड से मूव नहीं किया, चेक,
मैं स्पीड कम कर रहा हूं, that means gravity is dominant, that means this body will fall down, yes or no? So point number 1, weight. How is weight acting? Always acting vertically downwards. Tension. How is tension acting? Always acting along the string, but that particular force vector should start from the mass and it should travel along the string, या तो rope, या तो cable, या तो wire. And the third and the most important force is centripetal force. One by one. मैं 4 positions ले रहा हूँ. Position A, lowest, unique. Position B, highest, unique. Position C or C dash, semi-unique. And position D, random. पहले मैं weight vector बनाऊंगा. चारों positions पे. Students, one by one. 1, 2, 3, and 4. Weight is always acting vertically downwards. 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 Are you convinced? Yes. This is mg. This is mg. This is mg. And this is mg. So mg समझा बेटा सब लोगों को? I am indicating mg by green color in the diagram. Everybody convinced? Now I am talking about tension. So can I say here, tension will be acting along the string, along the string, along the string, and along the string. पार्टिकल डी पे होता तो स्ट्रिंग ऐसा होता कि नहीं? मीन्स along the string, राइट? मैंने टेंशन फोर्स ब्लू कलर से बताया चारों लोकेशंस पे. समझा बेटा? सुपर डुपर श्योर. मैं किधर भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बता सकता हूं, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एनीवेयर. इट इज प्रोवाइडेड बाय समवन हु इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम. Who is present or who are present in the system? Not only tension this time, mg also. Over here, did we say that when a particle is performing horizontal circle, the necessary centripetal force is provided by tension in the string? But over here, even mg will come into action. Even mg will come into action, right? Centripetal force is a compulsory force. Without centripetal force, circular motion is not possible, right? I will start with unique position. First, you will have to concentrate on theta. कि आप एक particular position पे हो, तो उधर theta क्या है? आप एक particular position पे हो, तो उधर height क्या है? Yes or no? So first we are starting with unique position. So case one, at position A. What is this position, students? Lowest position. मुझे बेटा फोर्स का इक्वेशन लिखना है. एकदम सोच के बोलना. मैं जो बोलता हूं बस उसका आंसर करो. If you answer this properly, that means you understood the vector diagram properly. How many forces are available at A? 2. Very good. You will add them ki subtract them? Subtract. Proud of you because they are opposite vectors. Addition होता तो प्रॉब्लम नहीं था, right? ये फोर्स को मैं बोलता हूं टेंशन एट पॉइंट A. इसको मैं बोलता हूं टेंशन एट पॉइंट D. इसको मैं बोलता हूं टेंशन एट पॉइंट C. और इसके मैं बोलता हूं टेंशन एट पॉइंट B. So back to A. How many forces are available there? 2. Tension A and mg. Add की subtract. Addition होता तो प्रॉब्लम नहीं था because I could write TA plus mg. I could write mg plus T. Subtraction is so I have to be careful because subtraction is not commutative. सोच के बोलना बेटा. Please note centripetal force is compulsory. And centripetal force is not coming from outside anywhere. So TA minus mg ki mg minus TA? TA minus mg. Brilliant. Perfect. Because अगर ये force इससे powerful है तो बेटा कुछ तो difference बचा होगा ना? That means some greater force minus smaller force will be the resultant force, and the resultant force is acting along the radius towards the sector. If TA is greater than mg, then the net force is acting along AO ki OA. AO. Perfect. And what is the force acting along AO?
Correct. So at position A, which is the lowest position, do you agree with me? The force equation is tension at point A minus mg is equal to m va square upon r. Yes or no? मुझे टेंशन का इक्वेशन निकालना है. Because I should always take care that I am not crossing the breaking tension limit. Because if I cross breaking tension limit, the string will break and the particle will fly off along the tension. In horizontal circle also, in many subs we came across the word breaking force. So breaking tension, तो मुझे tension का equation निकालना है. So what is the equation of tension, students? Tension at point A is equal to mva square upon r plus mg. Yes or no? सबसे पहले equation लेके आने का. सबसे पहले equation लेके आने का. So this is tension at point A. Equation समझा? Super sure. Okay. दूसरा यूनिक पोजीशन कौन सा है? B. बराबर. तो यहां पे I will go for case 2, right? And I will call this as at position B, which is the highest position, which is the unique position. चलो बेटा same ideology apply करो. You will add these vectors की subtract. Very good. एडिशन में तो पंगा है ही नहीं. आप टीबी प्लस एमजी लिखो कि एमजी प्लस टीबी लिखो, एक ही बात है, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव. लुक एट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ दैट. आर बोथ ऑफ देम एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. इसका मतलब ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा था? दिस माइनस दिस. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस एंड दिस. सो हाउ विल आई राइट द इक्वेशन? टीबी प्लस एमजी is equal to mvb square upon r. मुझे टेंशन का इक्वेशन निकालना है. So what is tension at point B? Is it mvb square upon r minus mg? Yes or no? Let us call this as equation number 4. Now you may be wondering, sir उसको आपने 1 बोला, इसका डायरेक्ट 4 क्यों? Reason, मेरे पास दो अननोन्स है. एक टेंशन अननोन है और एक वेलोसिटी अननोन है. अच्छा, व्हाई वेलोसिटी इज अननोन? बिकॉज दिस इज वर्टिकल सर्कल. वेलोसिटी विल कीप चेंजिंग फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन. यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? मैक्सिमम. और यहाँ पे that means the velocity is changing from maximum to minimum, then again going to maximum. That means velocity is variable. Yes or no? So यहाँ पे मेरे पास दो अननोन्स है, TA and VA. मतलब मुझे इक्वेशन 2 TA के लिए चाहिए, इक्वेशन 3 VA के लिए चाहिए. That's why इक्वेशन 4. यहाँ तक समझा बेटा? Now very 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 important. You cannot solve this equation simultaneously. Simultaneous equation का मतलब क्या होता है? 2x minus y is 5 and 7x 3 plus 3y is equal to 7. मतलब आपके पास दो इक्वेशंस है और आपके पास दो अननोन्स है. लेकिन यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस है और 4 अननोन्स है. मींस यू कैन नॉट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस है लेकिन 4 अननोन्स है ना. दिस इज नॉट टी एंड दिस इज नॉट वी. दिस इज TA एंड VA. दिस इज नॉट T एंड दिस इज नॉट V. दिस इज TB VB. दैट मींस ऑल 4 आर डिफरेंट थिंग्स. नाउ हियर कम्स समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर देयर आर 2 unknowns. आई एम स्टक अप. Right? I cannot solve their simultaneous equations also. So here we take one special condition. एकदम ध्यान से सुनो बेटा. इधर ये पार्टिकल मैंने मूव किया, राइट? अब एकदम ध्यान से देखो. When this just becomes a certain value, can I say the string becomes loose? Yes. And the string becomes loose, that means the body falls down. राइट? अगर ये स्ट्रिंग एकदम टाउट है तो मुझे टेंशन फील होता है, राइट? लेकिन अगर ये स्ट्रिंग लूज है तो मुझे टेंशन फील ही नहीं होगा. यस और नो? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. विल यू प्लीज कम आउट? इमेजिन ही इज स्टैंडिंग हियर and a rope is tied to his neck. Yes or no? A rope is tied to his neck, and when this thing is taut, that time he is hanged till death.
अब या तो ये स्टूल पे चढ़ के ऊपर आ जाता है, या तो स्ट्रिंग मैं नीचे करता हूं, दैट मीन्स द स्ट्रिंग इज बिकमिंग लूज, तो उसको टेंशन फील ही नहीं होगा. देयर आर टू वर्ड्स, ही इज टेंस्ड, आई फील टेंशन. I am holding the rope, so I feel tension. His weight is acting vertically downwards, so tension is developed along the string, right? So it is something like I am having this as a fishing rod, right? मुझे पानी में फिश की तरह मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ऐसे रॉड पकड़ के खड़ा हूँ, इधर ही बैठ जाएगी काम. ओके, मैं ऐसे रॉड पकड़ के खड़ा हूँ, तो जब वो रॉड में फिश फंसती है तो मुझे हैवीनेस फील होता है ना, नहीं तो वो लूज ही है, राइट? तो ये रोप में कोई फंसता है तो मुझे टेंशन फील होता है. यस और नो? सो कैन आई से आई फील टेंशन एंड ही इज टेंस्ड. लेकिन या तो ये स्ट्रिंग मैंने लूज किया, या तो मैं इधर ही खड़ा हूं, गेट अप, सी द स्ट्रिंग बिकम्स लूज, सिट डाउन. बराबर, मैं अपना हाथ इधर ही रख रहा हूं, स्टैंड अप, स्ट्रिंग लूज हुआ. तो व्हेन द स्ट्रिंग जस्ट बिकम्स लूज, जस्ट, thank you, tension at that point becomes zero, and this is called equilibrium condition. सोचो ये सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे फील होगा, लोएस्ट पॉइंट पे तो उल्टा ज्यादा टेंशन फील होगा. उल्टा याद रखने का बेटा, उल्टा, और बहुत इजी है याद रखना, बहुत इजी है. इधर कौन सा साइन आया? इधर कौन सा साइन आया? यस और नो? सो ओवर हियर दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन. यस और नो? लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन. लोएस्ट जीरो हो सकता है. टेंशन कैनॉट बी नेगेटिव, टेंशन कैनॉट बी नेगेटिव. द लीस्ट पॉसिबल टेंशन कैन बी जीरो. तो वो इधर तो नहीं हो सकता है ना बेटा, इधर तो ज्यादा होगा उल्टा. यस और नो? Lowest possible tension can be zero here, right? So when this happens, it's again a unique condition. Tension reduce होते 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 zero होगा, लेकिन negative नहीं हो सकता है कभी. इसका मतलब ये हुआ कि when this force just becomes equal to this force, can I say this answer can be zero? Right? And this is called equilibrium condition. So in equilibrium condition, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसके लिए इक्विलिब्रियम वर्ड बोलना जरूरी है. इसके लिए इक्विलिब्रियम वर्ड बोलना जरूरी है, नहीं तो आप टेंशन जीरो नहीं लिख सकते हो. टेंशन इज समथिंग 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 7 न्यूटन माइनस 5.1, राइट? या तो ये सपोज 6 हो गया, 6 5 5.55 5. यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन the tension just becomes zero. The tension just becomes zero. मतलब मेरे पास दो में से एक अननोन आ गया. मेरे पास दो अननोन्स थे, टोटली 4 अननोन्स थे, TB, VB, TA, VA. वो 4 में से मैं पहला वाला अननोन लेके आया. But the compulsory condition is equilibrium. Let me call this as equation 5. Yes or no? Substitute this 5 in 4 because now you know TB. Substitute equation 5 in equation 4. What will you get? 0 is equal to mvb square upon r minus mg. Yes or no? इसका मतलब ये हुआ कि mvb square upon r is equal to mg. Look at the beauty of this, beta. Look at the beauty of this. जिसकी वजह से बॉडी गिरने वाला था, जिसकी वजह से बॉडी गिरने वाला था, वो खुद सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है. बॉडी किसकी वजह से गिरने वाला था? वेट की वजह से. अब वो वेट खुद सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है. यू नो हाउ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कम ऑन दिस. अ फाइटर पायलट इज लूपिंग द लूप. फाइटर प्लेन वर्टिकल सर्कल में जा रहा है. फाइटर पायलट इधर था, नीचे की पोजीशन में. ये पायलट का सीट है, ये पायलट है. अब जब ये ऊपर गया तो पायलट का सीट ऊपर है, पायलट नीचे है, लेकिन फिर भी वो पायलट गिरता नहीं, बिकॉज बाय द टाइम ग्रेविटी ट्राइज टू पुल हिम, ही हैज ऑलरेडी क्रॉस दैट पोजीशन.
आप जब वर्टिकल मैरीगो राउंड में जाते हो, एंड इफ यू बिलीव इन फिजिक्स, एंड इफ यू डोंट लॉक योरसेल्फ, right, and if a certain speed is maintained, right, you will not fall down. Trust me beta, ये बहुत beautiful experiment है, and in this experiment what we do is, ये मैं जितने भी experiments बोल रहा हूँ, ये multiple choice questions है, इसमें पानी है, I'm tying a rope here, I start moving this in circle, speed बढ़ा रहा हूँ, तो पहले ये ऐसे जाएगा, पहले ये ऐसे जाएगा, फिर इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल में जाएगा, फिर उसको मैं वर्टिकल सर्कल में कन्वर्ट करूंगा. हाउ? ये मैं ऐसे करूंगा. एंड इमेजिन दिस इज द वाटर बॉटल विथ द माउथ ओपन, तो मैं ऐसे करूंगा, राइट. बाद में इसका स्पीड बढ़ते जाएगा और ग्रेजुअली मैं उसको वर्टिकल सर्कल में कन्वर्ट करूंगा. तो जब मैं इसको वर्टिकल सर्कल में कन्वर्ट करूंगा, this is the mouth of the tube right now, open, and this is the base of the tube, right. When it goes in vertical circle, ये ऐसा हो जाएगा. That means the base is up and the mouth is open, so water should spill out of the bucket. किसकी वजह से वाटर बाहर आएगा? वेट की वजह से. लेकिन जिसकी वजह से वो बाहर आने वाला था, वो खुद अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है. And centripetal force is compulsory for circular motion. इसका मतलब ये हुआ कि the one who was supposed to be the poison is the medicine. जिसकी वजह से ये मरने वाला था, उसी की वजह से वो बच रहा है. Are you getting my point? This is the beauty of vertical circle, right? In vertical circle, the tension at the highest point or the normal reaction at the highest point. अगर मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल ले रहा हूं तो मुझे टेंशन बोलना पड़ेगा. अब यहाँ पे पायलट है, तो पायलट इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्लिप, सो mg डाउन नॉर्मल रिएक्शन अप, mg डाउन नॉर्मल रिएक्शन आल्सो डाउन. सोचो ये पायलट है, तो पायलट का वेट डाउनवर्ड्स, ये पायलट है, पायलट का वेट डाउनवर्ड्स, राइट. पायलट इज ऑन द सीट, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पायलट, दिस इज द सीट, दिस इज द पायलट, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. तो जैसे यहाँ पे टेंशन जस्ट जीरो होता है, जस्ट, वैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो होता है. बाकी कौन बचा? वेट. जिसकी वजह से वो गिरने वाला था, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज द फैक्ट इज ही इज परफॉर्मिंग सर्कल. तो अगर वो सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो कहीं से तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, कहीं से तो आएगा, बाहर से तो नहीं आएगा. अभी मेरे पास यहाँ पे दो लोग थे, mg एंड n, and just becomes zero. Highest point पे lowest answer. So because n becomes zero, mg becomes the savior. Because n becomes zero, mg saves it. Mg is not allowing it to fall down because mg itself is along the radius towards the center, and therefore this itself is playing the role of centrifugal force. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा ये था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट. वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पे कौन जीरो होता है? If it is a problem related to a string, then tension in the string. And if it is a problem related to one body in contact with the other, then normal reaction. Are you getting my point? जब आप मोटरसाइकिल पे राइड करते हो, राइट, आप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल पे जा रहे हो और आप लोएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल पे जा रहे हो. ये आपका बाइक है, ये आपका बाइक है, आप हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहे हो, अभी स्पीड ब्रेकर आया, या आप हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हो, फिर आप वापस हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहे हो, फिर खड्डा आया, आप लोएस्ट पॉइंट पे जा रहे हो. आपको क्या लग रहा है आपका कांटेक्ट लूज करने का चांस किधर है? इधर, इधर कि इधर? सोच के बोलना. दिस इज हॉरिजॉन्टल पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज लोएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट. जब आप एकदम स्पीड में जाते हो बेटा, राइट, आपने अपना स्पीड कम नहीं किया, एकदम स्पीड में गए, राइट, दैट मींस यू टेंड टू फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंशन, बट बिकॉज ऑफ द हेवीनेस ऑफ द बाइक यू कम डाउन. So for fraction of a second, because your speed is very high, you may lose contact. Yes or no? आपका बाइक जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाता है, are you experiencing this? That means for fraction of a second you are not in contact with the road. That means you are not able to exert action force. So the ground is not able to exert reaction force on you. So it is because of the reaction force becoming zero, you feel weightless.
you have weight. But how will you come to know you have weight? Somebody makes you feel that. सोचो ये सरफेस है ही नहीं, राइट? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरा वेट है? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. आप एक वेइंग मशीन लो, पोर्टेबल वेइंग मशीन, उसके ऊपर खड़े रहो. यस और नो? सो व्हाट यू एक्सर्ट यू गेट बैक. सो द मशीन इज रीडिंग what is the force exerted by the ground on you. Now take the same weighing machine inside the lift and perform 3 experiments. Experiment number 1, lift is at rest, take your reading. You will note down what you are. If you are 60, you will note down 60. But if it is a multi-story building, that means when the lift is accelerating up, छोटे बिल्डिंग में ये आइडिया नहीं आएगा, बिकॉज बाय द टाइम लिफ्ट एक्सेलरेट्स अप आपका उतरने का टाइम आ गया. आर यू गेटिंग दिस? सो इफ इट इज 50-60 स्टोरी बिल्डिंग, सो लिफ्ट विल हैव चांस टू स्पीड अप. दैट मींस इट विल एक्सेलरेट. यू विल नोट डाउन लिटिल मोर देन व्हाट यू आर. दिस डज नॉट मीन योर रियल वेट इज इंक्रीज्ड. This does not mean your real weight is increased. Your weight was mg. Now your weight is mg plus ma, where a is the acceleration of the lift. When the lift comes down, you will feel little less than what you are. 4th experiment. Somebody cuts the rope of the lift. आप जब नीचे आ रहे थे, your weight was mg minus ma. That is coming down. Right? लेकिन जब आप नीचे आ रहे थे after cutting the rope of the lift, that means you are not coming down, you are falling down. So it is not mg minus ma, it is mg minus mg. So it is not because your weight is becoming zero. No, it is because of the normal reaction exerted in your body is becoming zero. Who makes you feel your weight? The surface on which you are standing. एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट देता हूं बेटा. दूसरा सिंपल एक्सपेरिमेंट देता हूं. ये क्लासरूम का हाइट है अबाउट 10 फीट, राइट? इसका लेंथ है अबाउट 20 फीट और इसका विड्थ है अबाउट 14. सो 20 by 14 by 10. सपोज ये स्विमिंग पूल है, सपोज, राइट? स्विमिंग पूल कैसा होता है बेटा? स्विमिंग पूल ऐसा होता है कि ये आपका स्विमिंग पूल है, राइट? तो यहाँ पे फ्लोर होता है और बाद में वो स्लोप बढ़ते जाता है धीरे धीरे, और ये यहाँ पे पानी है, ये यहाँ पे पानी है, ये पानी है. Am I right? तो जब आप यहाँ पे खड़े हो, मे बी यू आर 2 to 3 feet deep in the swimming pool. फिर आप चल रहे हो फ्लोर पे, कहीं पे आप यहाँ पे आओगे, फिर कहीं पे आप यहाँ पे आओगे, फिर कहीं पे आप यहाँ पे आओगे. इसका मतलब 2 feet, 3 feet inside water, 4 feet inside water, completely inside water. So over here, whatever portion of your body is inside water, that much apparent force is acting on your body. What we call it as buoyant force. Yes or no? What we call it as buoyant force. तो उसकी वजह से आपको फील होता है कि आपका वेट थोड़ा कम हुआ. एक्चुअली कम नहीं हुआ है, राइट? अगर आप पानी में होते ही नहीं, राइट? सपोज ये स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं होता, राइट? मतलब यहाँ पे पानी ही नहीं होता, तो who is going to exert buoyant force on you? No one. So you feel what you are. But पानी की वजह से you feel that you have lost little weight because somebody is challenging your weight. Yes or no? Are you getting my point? तो बेटा यहाँ पे और यहाँ पे अगर टेंशन मिनिमम मतलब 0 होने का चांस है तो वो किधर है? इधर तो हो ही नहीं सकता है. लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन, मतलब अगर वो चांस है तो किधर है? हाईएस्ट पॉइंट पे, राइट? ये पूरा जो स्टोरी सुनाया मैंने, वो किसके लिए सुनाया मालूम है? मेरे पास 4 अननोन्स थे, मेरे पास 2 इक्वेशंस थे, लेकिन वो 2 इक्वेशंस में साइमल्टेनियसली सॉल्व भी नहीं कर सकता था. सो आई हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 1 अननोन. एंड हाउ टू सॉल्व दैट एटलीस्ट 1 अननोन? अंडरस्टूड? इक्विलिब्रियम वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब खाली हाईएस्ट पॉइंट को देखना बेटा, खाली हाईएस्ट पॉइंट को. स्ट्रिंग लूज हुआ, तो जैसे स्ट्रिंग लूज हुआ मुझे टेंशन फील नहीं होगा. जब तक ये स्ट्रिंग टाइट है, टाउट, इसको बोलते हैं स्लेकेंड और इसको बोलते हैं टाउट, TAUT, मतलब स्ट्रेट. स्लेकेंड मतलब लूज. तो लूज स्ट्रिंग में मुझे टेंशन फील ही नहीं होगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Am I successful in getting 1 unknown out of 2? Therefore I will be able to get the second one. What is the second one? M is gone. इसका मतलब what is VB square?
What is VB square? Is it RG? And therefore what is VB? Under root RG. Yes or no? Let me call this as equation number 6. Let me call this as equation number 6. चेक करो बेटा, मैंने आपको पास्ट में बोला था कि ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा अंडर रूट आर जी इंटू समथिंग विच इज डायमेंशनलेस. हु इज दैट समथिंग हियर? वैल्यू 1, बिकॉज रूट आर जी कैन बी रिटन एज रूट 1 आर जी. आ गया? इधर भी वही सीन होगा, जैसे जैसे मैं ये चैप्टर में आगे बढ़ूंगा इधर भी वही सीन होगा. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 unknowns each, so totally 4 unknowns. First unknown got, second unknown got. Now let us come here. Now let us come here. Now I am stuck. उधर तो मैं बाहर आ पाया, but now I am stuck. मेरे पास 2 unknowns है, एक equation है. Whenever you are stuck in physics, in any experiment, always go for law of conservation of energy. It will help you. Always go for law of conservation of energy. What does that mean? Kinetic energy at one point, but potential energy at that point is equal to kinetic energy at the other point plus potential energy at that point. Apply common sense. Lowest point पे कौन सा energy highest है? Brilliant. Therefore potential energy lowest है. Lowest potential energy, highest kinetic energy. बोलो. मेरे पास A और B यूनिक पोजीशंस है ना? मेरे पास A और B यूनिक पोजीशंस है. अभी इधर में अटक गया तो व्हाट टू डू? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. समझा बेटा? Super simple. What is kinetic energy at A? Half mv square. What is potential energy at A? mg 0. Because यहाँ पे ना बॉडी. सोच के बोलना. What is this? Half mvb square plus mg. Proud of you. Very good. It is 2r. Because आप यहाँ पे हो अभी. So this distance is the diameter of the circle. Right? ये बंदा 0 हो गया. मैं मास थ्रू आउट कैंसिल कर सकता हूं. सो आई एम गेटिंग VA स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर प्लस 4RG. सोचो बेटा, ये हाफ VA स्क्वायर था, ये हाफ VB स्क्वायर था और ये 2RG था. तो मैंने 1 VA स्क्वायर लिखा, देयरफॉर 1 VB स्क्वायर लिखा और ये 4RG लिखा. देयर आर 2 unknowns, but oh lovely, out of 2 unknowns 1 unknown I know. So can I say substituting equation 6 here, substituting equation 6 here, what will you get? VA square is equal to RG plus 4RG, and therefore what will be VA? Under root 5RG. Under root 5RG. Let me call this as equation number 2. Are you getting my point? I hope I am not fast. आपके पास 2 unknowns थे, TA and VA. अभी आपके पास VA आ गया, तो you can substitute this here. So can I say substituting equation 2 in equation 1, what will you get? TA is equal to mVA square upon R plus mg, and this is 5RG. R गया, इसका मतलब TA is equal to 6 mg. TA is equal to 6 mg. Tension at the lowest point is highest, and tension at the highest point is lowest. अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा, इधर वेलोसिटी कितना आया? दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए रूट 5RG से कम होना ही नहीं चाहिए. रूट 4RG होगा ना
तो इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। एकदम ध्यान से मेरा लैंग्वेज सुनो, क्यों बोल रहा हूँ मालूम है ये? अब तक हम लोगों ने जितने भी आर्टिकल्स किए, बैंड रोड, अनबैंड रोड, बैंड रोड विथ फ्रिक्शन, उसमें हम लोग वो का स्टाइल क्या बोलते थे? हम लोग बोलने का स्टाइल क्या था? इट इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। When you say V equal to root of mu rg, that means if you cross this value, you start becoming unsafe. So you are saying maximum safe velocity. लेकिन यहाँ पे उल्टा बोलना पड़ेगा कि this is the minimum requirement. यहाँ पे minimum requirement कितना होना चाहिए? रूट rg. मतलब बेटा ये रूट 2 rg होगा तो चलेगा, रूट 3 rg होगा तो चलेगा, रूट 4 rg होगा तो चलेगा। कब तक चलेगा वो भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक, क्योंकि बाद में स्ट्रिंग टूट जाएगी। लेकिन एक बात श्योर है कि इधर रूट आरजी से कम स्पीड नहीं होना चाहिए, इधर रूट 5 आरजी से कम स्पीड नहीं होना चाहिए। यस और नो? इधर मिनिमम टेंशन इज 0, मतलब ये वैल्यू 0 से कम नहीं होगा, बिकॉज टेंशन कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब जरूरी नहीं है बेटा टेंशन इधर 0 होगा, इधर टेंशन 1 mg हो सकता है, 1.5 mg हो सकता है, 2 mg हो सकता है। अगर टेंशन इधर 0 है तो इधर 6 mg है, लेकिन अगर इधर 0 से ज्यादा है तो इधर 6 mg से ज्यादा होगा। इधर 1 mg है तो इधर 7 mg हो जाएगा, इधर 2 mg है तो इधर 8 mg हो जाएगा, इधर 3 mg है तो इधर। व्हाट डज दिस मीन? टेंशन डिफरेंस एट दिस 2 पॉइंट्स, एक लोएस्ट और एक, इधर बेटा इक्विलिब्रियम में टेंशन कितना आया? 0। इधर टेंशन कितना है? 6 mg। मतलब जब ये 0 है तब ये 6 mg है। अब सोचो ये 1 mg है, ये 2 mg है, ये 3 mg है, ये 4 mg है। सपोज ब्रेकिंग टेंशन इज 10 mg, सपोज अब ये 5 mg है, तो क्या ये 11 mg हो सकता है? बिकॉज ब्रेकिंग टेंशन 10 था। अब आप इसको 11 mg करने की ट्राई करोगे, the string is not strong enough to hold it, and therefore the string will break and the particle will fly off. Where will the particle fly off? Any idea? Along the tangent. Brilliant. इसका मतलब अब बेटा मैं जो रेड वेक्टर बना रहा हूँ, हाँ, मुझे सोच के बताओ मैं कौन सा वेक्टर बना रहा हूँ? 1 2 3 and 4। बेटा ये रेड वाले वेक्टर्स कौन से हैं? वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट ए बराबर वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट डी, वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट सी, वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट बी। कन्विंस्ड? आई होप मैं एकदम आराम से जा रहा हूं, आई होप मैं एकदम आराम से जा रहा हूं, राइट? एक बार यहां तक रैपिड फायर राउंड हो जाए, बिकॉज मैंने 2 ही पोजीशंस किया है। मेरा तीसरा पोजीशन है सेमी यूनिक विच इज हॉरिजॉन्टल, और मेरा चौथा सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज वो लोग क्वेश्चन कहीं पे भी पूछ सकते हैं, वो लोग क्वेश्चन कहीं पे भी पूछ सकते हैं, 1 by 1। डोंट लुक एट द बोर्ड, जस्ट चेक योर मेमोरी। यहां पे हाइट कितना? 0। एंगल कितना? 0। यहां पे हाइट कितना? 1। एंगल कितना? 180। प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। यहां पे हाइट कितना? वेरी गुड, वेरी गुड। और एंगल कितना? 90। अभी मैं सिर्फ एंगल्स पूछ रहा हूं, ध्यान से। 0 90 180 90 0 90 180 0 90 0 180 90। I was just checking your presence of mind. Height 0 2r 0 2r 0 r between r and 2। मैंने ये नहीं बोला, ये between 0 and r। 0 2r 0 r समझा बेटा? श्योर? दैट मीन्स मिनिमम हाइट इज 0, maximum height is 2r, minimum angle is 0 degree, maximum angle is 180 degree. At lowest position, height is minimum, angle is minimum. Tension and velocity both ulta. Tension at the lowest point is highest. Velocity at the lowest point is highest.
tension at the highest point is lowest, velocity at the highest point is lowest. सबसे पहला इक्वेशन, सबसे पहला ऐड की सकते हैं TA minus mg की mg minus TA. What is TA minus mg? mv square upon ऐड की subtract, right? TB plus mg is mv square upon r. So you are getting two equations. Tension का equation at point A, tension at the lowest point is highest, tension at the highest point is lowest. अभी टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज हाईएस्ट, वो हाईएस्ट कितना मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज दैट विल चेंज फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग. कोई स्ट्रिंग के लिए ब्रेकिंग टेंशन 10 mg हो सकता है, किसी के लिए 11 mg हो सकता है, किसी के लिए 15 mg हो सकता है. आई डोंट नो, स्काई इज द लिमिट. लेकिन लोएस्ट कितना? 0. यस और नो? मैं मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे आउट ऑफ 100, वो मेरे हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे. हार्डवर्क करने के बाद भी मैं एग्जाम में कुछ भूल गया, लेकिन मिनिमम मार्क्स के बारे में मैं श्योर हूं ना कि वो 0 आएगा. नाम लिख के आऊंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, पास करके बताओ, ऐसा एटीट्यूड, पास करके बताओ, कुछ नहीं लिखूंगा पेपर में. मतलब मैं मिनिमम मार्क्स के बारे में श्योर हूं, मैक्सिमम मार्क्स के बारे में श्योर हूं. वो मेरा लक, मेरा हार्डवर्क, राइट? वो दिन पे एग्जाम में क्या आ गया मुझे नहीं मालूम, राइट? अच्छा, ये 100 से ज्यादा नहीं आएगा. 100 on 100 इज द हाईएस्ट स्कोर. मतलब आप ब्रेकिंग टेंशन क्रॉस करोगे तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं. How many equations? 2. How many unknowns? 4. Can you solve them simultaneously? No, because these are two different unknowns, right? So there are 4 unknowns. Which is the simplest way to come out of this trap? Highest point पे tension is lowest, and the minimum possible tension is 0, and that can happen only at the highest point, right? So when the tension just becomes 0, we call this as equilibrium condition. राइट? तो जब आपको टेंशन 0 मिला, मतलब आपको VB का वैल्यू मिला. व्हाट इज द गोल्डन सेंटेंस अबाउट दिस? जिसकी वजह से ये स्फीयर नीचे गिरने वाला था. किसकी वजह से गिरने वाला था? mg की वजह से. वो खुद अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है. दैट मींस mg itself is utilized as centripetal force, and because it is utilized as centripetal force, सर्कुलर मोशन कंटिन्यूस. तो जिसकी वजह से वो मरने वाला था, उसी की वजह से वो बच गया. आर यू गेटिंग दिस? एक बार ये दोनों अननोन्स मिला, इफ आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द सेम टेक्निक हियर, आई फेल. बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला था हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन. फिर एग्जामिनर मुझे पूछेगा नयन कितना. इधर मैं 0 बोल पाया, इधर मैं बोल पाऊंगा क्या कि mg का हाउ मेनी टाइम्स? आई डोंट नो. लेकिन वो डेफिनेटली 6 mg से ज्यादा होगा. यस और नो? 6 mg का वो 7 mg हो सकता है, 8 mg हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग दैट स्ट्रिंग इज. एग्जाम का टेंशन सबको होता है बेटा. किसका स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी पावरफुल है वो स्टूडेंट सस्टेन करता है. एग्जाम का टेंशन सबको होता है. मैं एग्जाम दूंगा ना, भले मैं सर हूं, लेकिन जब मैं कोई एग्जाम दे रहा तो वो टाइम पे एग्जाम का टेंशन मुझे भी यार कैसा जाएगा मेरा पेपर, राइट? अब एकदम टफ क्वेश्चंस है तो एकदम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट गिव अप नहीं करेगा. वो ऐसा सोचेगा यार ठीक है मेरे लिए थोड़ी टफ है, सबके लिए टफ होगा, मेरे फ्रेंड्स को भी ये टफ लगा, राइट? और जो स्टूडेंट डरने वाला स्टूडेंट है, टफ है यार, ये तो मैंने किधर देखा था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आते हैं ये लोग. यस और एंड यू गिव अप. मॉरल ऑफ द स्टोरी, हाईएस्ट लोड बेरिंग कैपेसिटी या तो हाईएस्ट स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी या तो हाईएस्ट टेंशन बेरिंग कैपेसिटी, that will change from string to string. लेकिन lowest के बारे में मैं sure कि lowest can be 0. And at what point it can be 0? Highest. Highest point पे lowest answer, lowest point पे highest answer. अब तक बेटा जो चारों equations मैंने solve किया वो आपको समझा? Sure. Velocity at the lowest point, √5 आ रहा है. Velocity at the highest point, √1. Tension at the lowest point, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, बट इन इक्विलिब्रियम. अगर आप ये 0 बोलते हो तो आपको इक्विलिब्रियम वर्ड बोलना पड़ेगा. मतलब अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये 0 नहीं है, और अगर ये 0 नहीं है तो क्या है? मोर देन 0. अगर ये 0 के बदले हाफ mg होता है तो इसको 6.5 mg होना पड़ेगा. ये 1 mg होता है तो इसको 7 mg होना पड़ेगा. ये 2 तो ये 8, ये 3 ये तो 9. सपोज ब्रेकिंग टेंशन इज 9, तो फिर मैं ये बोलूंगा तो ये 4 तो ये 10 नहीं हो सकता है. 9 mg वाज द ब्रेकिंग टेंशन, स्ट्रिंग टूट गया.
पार्टिकल उड़ गया। समझा? एकदम अच्छे से समझा? मैंने ये स्पेशल पोजीशन कंसीडर किया, ये स्पेशल पोजीशन कंसीडर किया। विच इज द नेक्स्ट बेस्ट? हॉरिजॉन्टल, राइट? अब ध्यान से सुनो, पैटर्न देखो, पैटर्न। टेंशन, 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 व्हाट डू यू थिंक? इधर टेंशन क्या होगा? एग्जैक्टली 3 mg बेटा। अगर ये 6 mg और ये 0 है तो, अगर ये 6 mg है और ये 0 है तो कैन आई से C is the exact midway position? Are you getting my point? Therefore answer over here will be 3 mg. What about answer here? 3 mg. बोलो. 0. Hey, hello. 6. Some value between 6 mg and 3 mg. ये डायग्राम के लिए मतलब ये 6 mg है तो, अगर ये 7 mg है तो ये 1 mg हुआ और ये सारे वैल्यूज बदल जाएंगे फिर। यस और नो? केस 1 समझा, केस 2 समझा। अब मैं केस 3 लिखने जा रहा हूं। अब मैं केस 3 लिखने जा रहा हूं। ओके, केस 3 लिखने जा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेट। केस 3 इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। Case 3 is horizontal position. Which is that position? C या तो C dash. What will be tension at this point? Will it be T lowest plus T highest upon 2? Will this be 3 mg? Will this be 3 mg? अभी थोड़ा लॉजिकल आंसर है ये, साइंटिफिक आंसर नहीं है, लॉजिकल आंसर है। सोच के बोलो, थोड़ा ऐसा आपका गट फीलिंग क्या बोलता है उस हिसाब से बोलो। वेलोसिटी रूट 5 rg, वेलोसिटी रूट 1 rg, रूट 5 rg, रूट 1 rg, क्या लग रहा है? रूट 3 rg, रूट 5 rg, रूट 3 rg, रूट 1 rg, रूट 3 rg, रूट 5 rg, something between root 5 rg and root 3 rg, something between root 3 rg and root 1 rg। मतलब मेरा गट फीलिंग ये बोलता है कि ये आंसर रूट 3 rg होगा। अभी तक मैंने प्रूव नहीं किया है, ये आंसर मेरा रूट 3 rg होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैंने प्रूव नहीं किया, ये मैं बाद में प्रूव करूंगा। हाँ, ये वैल्यू, इसके बारे में हाउ नहीं, इसके बारे में बिकॉज रूट है इसमें, इसमें रूट नहीं था, सीधा सीधा इक्वेशन था। सो एवरेज आंसर आया। विच इज द लास्ट पोजीशन लेफ्ट? विच इज द लास्ट पोजीशन लेफ्ट? दिल्ली, ये वाला। सोच के बेटा, ये एंगल को मैं थीटा बोल सकता हूं। अब mg एंड टेंशन टिल्टेड वेक्टर्स, टिल्टेड। तो जैसे मैं यहां पे बोल सकता था ना कि आई कैन सबट्रैक्ट, वैसे मैं यहां पे नहीं बोल सकता हूं कि आई कैन सबट्रैक्ट। मतलब मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी रिजॉल्व करना है तो थीटा आना चाहिए। मैंने पहले भी ये गोल्डन सेंटेंस बोला था, वापिस बोल रहा हूं कि थीटा कैसे लाने का। आपके पास जो भी वेक्टर्स है उसको आप उल्टा डायरेक्शन में एक्सटेंड करो। ये मैंने mg को उल्टा डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ये मैंने टेंशन को उल्टा डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। यहां तक समझा? अगर ये बंदा थीटा है तो कहना है ये बंदा थीटा हुआ, बराबर। अभी मैं mg को रिजॉल्व करूंगा कि टेंशन को? 1 मिनट सोच के बोलना। माइंड यू मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर मैं mg को रिजॉल्व करूंगा तो ही मुझे इसका ऑपोजिट वेक्टर मिल सकता है। अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूंगा ना बेटा तो ये ऐसा आएगा, बराबर। ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ये स्ट्रिंग ऐसा जाके ऐसा नहीं जाता है, ये बॉब ऐसा जाके ऐसा नहीं जाता है। इज दैट क्लियर? सो रिजॉल्विंग विच वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड बेटा, एकदम परफेक्ट। समझा आपको? श्योर? अगर बेटा ये थीटा है तो ये थीटा है फिर, और अगर ये थीटा है तो ये mg cos थीटा हुआ,
और ये mg sin थीटा हुआ। आपको कौन चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको कौन चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज द सुपरस्टार ऑफ द स्टोरी। इसके बगैर तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हु इज गोइंग टू गिव यू सेंट्रीपिटल फोर्स? मींस वेरी सेंट्रीपिटल फोर्स। माइंड यू, यू आर एट पॉइंट D, वेरी सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग DO, अलोंग DO। तो D पे कौन से फोर्सेस अवेलेबल है? एक मेरे पास mg cos थीटा है और एक मेरे पास TD है। सोचो, ऐड की सकते हैं। प्राउड ऑफ यू। TD माइनस mg cos थीटा के mg cos थीटा माइनस TD? Brilliant. So this is case 4. And what is it? At any position. What is any position? D. So what will be this answer? Come on. What will be this answer? Tension at point D minus mg cos theta is equal to mvd square upon r. मुझे टेंशन का इक्वेशन चाहिए, so I get the last hero of the story. Tension at point D is mvd square upon r plus mg cos theta. Super duper hero of the story. You know why? This is my answer at any position. समझा कि वापिस बोलो? Now look at the beautiful story. Look at the beautiful story. When D becomes A, when point D becomes point A, मतलब आप इधर नहीं हो, आप इधर हो. What is theta? 0. Very good. What is cos 0? 1. जिधर जिधर आपको D दिखता है, उधर उधर आप A डालो. तो TA is mVA square upon R plus mg cos 0. Oh lovely. समझा कि वापिस बोलो? When point D becomes point A, what can you say about theta at point A? 0. आपको जिधर जिधर D दिखता है, उधर उधर आप A डालो और थीटा का वैल्यू 0 डालो. How will you read this? TA is mVA square upon R plus mg cos 0. What is cos 0? 1. Very good. आ गया आंसर? I'm sure next वाला easy आप लोगों के लिए. When point D becomes a B, theta becomes 180. Proud of you. Very nice. जिधर जिधर D दिखता है उधर उधर B डालो. What is cos 180? रीड करो इसको. TD is equal to mVB square upon R बराबर. Third question. When D becomes a C, when D becomes a C, what can you say about theta C? 90 degrees. Proud of you. Very good. डालो 90 इधर. You know what does this mean? Tension at point C is providing centripetal force. इसका मतलब horizontal position पे weight का contribution नहीं आया. Horizontal point पे weight का contribution नहीं आया. ध्यान से देखो. What is tension here? mv square upon r plus mg. What is tension here? mv square upon r minus mg. What is tension here? mv square upon r. No mg. No mg. मतलब पूरे वर्टिकल सर्कल में सिर्फ ये दो पोजीशंस ऐसे हैं where tension does not want to contribute. And you know why? ये दो ही पोजीशंस ऐसे हैं जो वर्टिकल सर्कल में और हॉरिजॉन्टल सर्कल में कॉमन है. ये आपका वर्टिकल सर्कल है. अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में कन्वर्ट करने की ट्राई करूं तो ये पॉइंट इधर आएगा, ये पॉइंट मेरी तरफ आएगा, लेकिन ये दो फिंगर्स है ना मेरे, वो जिधर है उधर ही रहेंगे. सोचो, हॉरिजॉन्टल सर्कल में who was playing the role of centripetal force? Vertical circle में who is playing the role of centripetal force? Tension and mg. But what about those horizontal positions? Only tension, no mg. Why? Because mg का partner 0 है. मतलब ये bankrupt हो गया.
So this says, sorry, I won't be able to contribute. You only contribute. So tension at point C क्या आया बेटा? Tension at point C क्या आया? Yes, everyone. Yes. This I am substituting here because मेरे पास इधर टेंशन एट सी का इक्वेशन है, मेरे पास इधर टेंशन एट सी का वैल्यू है which is 3 mg. So tell me who is this? mvc square upon r, right? So if I say mvc square upon r is equal to 3 mg, बराबर ना? tc is 3 mg from here and tc is mvc square upon r from here. M is gone. Vc square is 3rg. Vc is root 3rg. ये मेरा गट फीलिंग नहीं है, ये प्योर साइंस है. एंड देयरफॉर हाउ बिकम्स वाव. लॉजिक समझा बेटा? सुपर डुपर श्योर, एकदम श्योर. आज मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा. रीजन, दिस इज द वीकेंड. इतना पार्ट भी याद करना भारी है, इतना पार्ट भी याद करना भारी है. टोटली देयर आर 7 थिंग्स. थीटा, हाइट, काइनेटिक एनर्जी, potential energy, total energy, tension and velocity. Total 7 पार्ट है and therefore total 28 आंसर्स है, क्योंकि 4 पोजीशंस है A B C D, लोएस्ट, हाईएस्ट, हॉरिजॉन्टल, एंड. टोटल 4 पोजीशंस है और टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है. थीटा, हाइट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टेंशन एंड वेलोसिटी. ये 7 में से आज मैं 4 ही कर रहा हूं. Right? Today I am not doing kinetic energy. Today I am not doing potential energy. How much time do we have? Right? We can. No problem. कर लेता हूँ. I'll tell you why. I'll tell you why. अगर मुझे potential energy ढूंढना है, तो मुझे सिर्फ height का value substitute करना है. और अगर मुझे kinetic energy ढूंढना है, तो मुझे velocity का value substitute करना है. और मेरे पास velocities है. टोटल में तो कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट? 1 by 1. पहले मैं ये 7 में से 4 पूछ रहा हूँ. आप लोगों को बोर्ड पे नहीं देखना है, आप लोगों को बोर्ड पे नहीं देखना है. एंड वी आर डिस्कसिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. चल, वाह निश्चित. वेलोसिटी √5r, √3r, √1r, √3r, √5r. Anything between √5rg and √3rg. Anything between √3rg and √5rg. तो अभी मैं 4 पोजीशंस बोल रहा हूं. वेलोसिटी √5rg, √1rg, √3rg. Something between √1rg and √5rg. क्योंकि ये सुनो तो मैंने जो बोला वो भी तो गलत नहीं है ना. ये √5rg है, ये √3rg है. मैंने बोला दिस आंसर इज बिटवीन √5rg एंड √1rg. गलत क्या बोला? तुम लोग थोड़ा उसको और एक्यूरेट बोल रहे हो, √5rg एंड √3rg. लेकिन मेरा भी तो आंसर गलत नहीं है ना. 7 is a number lying between 5 and 10. That is what you are saying. 7 is a number lying between 1 and 10. ये मैं बोल रहा हूँ. तो तुम लोग भी राइट हो, मैं भी राइट हूँ. मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं तुम लोगों को? तो आई एम क्रिटिसाइजिंग मी. शट अप. बोलो. वेलोसिटी समझा बेटा? अभी हाइट 0 to r, 0 r, something between 0 and 2r. मतलब हाइट 0 से कम नहीं हो सकता है, 2r से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट? थीटा 0, 180, 0, 180, 90, 90. बराबर. टेंशन का इक्वेशन वैल्यू नहीं चाहिए मुझे. इक्वेशन mv² अपॉन r प्लस mg, mv² अपॉन r माइनस mg, mv² अपॉन r प्लस mg, mv² अपॉन r माइनस mg, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, cos थीटा. तो एकदम जनरल इक्वेशन क्या याद रखने का? mv² अपॉन r
cos theta. बस ये प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे. क्या है? m square upon r plus mg cos theta. Therefore m square upon r plus mg cos 0. m square upon r plus mg cos 180. m square upon r plus mg cos 90. m square upon r plus mg cos theta. m square upon r plus mg cos theta. m square upon r plus mg cos theta. m square upon r plus mg cos 180. m square upon r plus mg cos 0. Brilliant. बेटा this is the technique to memorize this article. घर पे ऐसा एक सर्कल लेके बैठने का और ये सब करने का. मुझे मम्मी का फोन आना चाहिए सर मेरा बच्चा पागल हो गया. ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज. ट्रस्ट. ओके. अभी बेटा वैल्यू. अभी मैं इक्वेशन पूछा था, अभी मुझे वैल्यूज चाहिए. इन इक्विलिब्रियम कंडीशन टेंशन 6 नहीं बोलने का. 6 न्यूटन होता है. 6 mg. 6 mg. Suppose 1 mg. 7 mg. Suppose 2 mg. 8 mg. Suppose 3 mg. 9 mg. Suppose 4 mg. 10 mg. Suppose the breaking tension is 10 mg. So suppose 5 mg. No, never. The string is broken. The string is broken. अभी बेटा कितने आंसर्स हो गए अपने? 4 4 16. 4 चीजें की ना हम लोगों ने. टेंशन, वेलोसिटी, एंगल एंड हाइट. अभी पोटेंशियल एनर्जी. लेट मी चेक यू कैन गिव मी दिस आंसर और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी 2 mrg. What is potential energy at C? mrg. What is potential energy at D? mgh. Because ये किधर है मुझे नहीं मालूम है. So now comes a beautiful equation for H. ये H हो गया बेटा. ये सोच के बोलना, समझा कि नहीं. प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज. ये H हुआ. ये मेरा रेफरेंस लाइन है. ये पार्टिकल D पे है, मतलब ये मेरा H हुआ. राइट. H कैन बी रिटन एज L टाइम्स 1 माइनस cos थीटा. H कैन बी रिटन एज L टाइम्स 1 माइनस cos थीटा. अभी मुझे ये समझना है कैसे आया. ये मुझे समझना है. ये कौन है बेटा? नहीं, ये कौन है? ये L. ये कौन है? L. बराबर. ये कौन है? ये. तो फिर ये कौन हुआ? इधर तक सोच के बोलना बेटा प्लीज. L cos थीटा. आई एम प्राउड ऑफ यू. वेरी नाइस. ये कौन है? तो फिर ये कौन है? ये कौन है? तो ये कौन है? तो ये कौन हुआ? थीटा का बाजू वाला. दैट मींस L cos थीटा. तो L cos थीटा प्लस H इज L. ये कौन है बेटा बोलो? ये कौन है? ये कौन है? सिर्फ डायग्राम देखो और मुझे बताओ समझा कि नहीं. उसका रीजन बोलता हूं बेटा. एक बार आपको हाइट मिल गया ना तो पोटेंशियल एनर्जी मिलना आसान है. वापिस बोलो. ये कौन है? तो ये कौन है? 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 तो व्हाट कैन यू से अबाउट H? L time L minus L cos theta. So H is L common. तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल इक्वेशन क्या हुआ? mgh. Therefore it is mg L 1 minus cos theta. अभी मुझे देखना है कि मेरे आगे वाले सब आंसर्स जो मैंने दिए थे वो राइट है कि रॉन्ग है. व्हाट इज थीटा हियर? 0. cos 0 1 minus 1 0.
1 minus 0, 1 minus 1, 1. 1 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. आ गया आंसर. वापिस सुनो. What is theta here? 0. Cos 0? 1. 1 minus 1, 0. आ गया आंसर. Okay, what is theta here? 180. What is cos 180? -1. What is 1 minus minus 1? 2. आ गया मेरा आंसर. What is theta here? 90. What is cos 90? 0. आ गया मेरा आंसर. So very simple. What is potential energy here? 0. mg. क्या mg? नालायक को mg फोर्स का इक्वेशन होता है. डायमेंशनली गलत हो तुम लोग. What is potential energy here? 0. What is potential energy here? थीटा इज दिस एंगल. अगर ये एंगल 60 है तो 1 minus half. अगर ये एंगल 30 है तो 1 minus √3/2. लेकिन ये सारे आंसर्स 0 से कम नहीं होंगे और इससे ज्यादा नहीं. यस और नो, यस और नो. अभी मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा हूँ. सोच के बताओ. Let me check you can do it or no. What do you think is kinetic energy here? Half m. That is 5 rg. Because velocity here is √5 rg. Half m 5 rg. Half m 3 rg. Half m rg. Half m 3 rg. Half m 5 rg. पक्का. ओके. यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या आया? Rg. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था? 2mRg. तो टोटल एनर्जी क्या आना चाहिए? 5/2 mRg. सोचो. 2.5. And I know that total energy is conserved. मतलब अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी 5/2 mRg है तो सब जगह पे 5/2 mRg होना चाहिए. मुझे चेक करना है. हाँ, लिटिल ओरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हाँ, सोच के आंसर देना बेटा. What is kinetic energy here? Half m 5 rg. मतलब 5/2 mRg. What is potential energy? 0. Total 5 mRg. वापिस सुनो. What is kinetic energy? Half m 5 rg. Half m rg. अभी मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ये पोजीशन पे पूछ रहा हूँ. Half m 5 rg. Potential energy 0. 5/2 plus 0. 5/2. Kinetic energy 5/2. Potential energy 0. Total energy 5/2. Okay. Kinetic energy half. mRg कॉमन फैक्टर है बेटा, वो तो समझ में आने वाली बात है. हाफ प्लस 2. एग्जैक्टली. तो मतलब मेरा आंसर इधर भी 5/2 आना चाहिए. ओके. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हियर? 3/2 mRg. 3/2 mRg. एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mRg. 3/2 plus 1. When one kind of energy disappears, other kind of energy reappears, such that the total energy for vertical circle is always constant and is equal to 5/2 mRg. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है. लेकिन सब जगह पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. और वो कितना है? अपने पास टोटल 7 चीजें हैं. थीटा, हाइट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टेंशन, वेलोसिटी. ये 7 में से सिर्फ एक ही बंदा है जो थ्रू आउट कांस्टेंट है. एंड हु इज दैट? एंड हाउ मच इज दैट? समझा? वापिस मेरे पास 7 चीजें हैं. हाइट, एंगल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टेंशन एंड वेलोसिटी. ये 7 में से सिर्फ एक ही बंदा कांस्टेंट है सारे पोजीशंस. यस और नो? अभी मैं आप लोगों को टोटली 28 चीजें पूछूंगा. 28. सुनने में ज्यादा लगता है, बोलने में एकदम पकड़ो है. डोंट वरी.
5/2 तभी होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। नो, 5/2 थ्रू आउट होगा। 0 तो ही ये होगा ना cos theta। अरे बेटा ये तेरा सपोज ये तेरा 1 mg हो गया और ये 7 mg हो गया, तो टेंशन बैलेंस आउट करके एवरेज होता है, लेकिन एनर्जी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अगर टोटल एनर्जी से वैल्यू ज्यादा चाहिए, 5/2 mrg से ज्यादा चाहिए, मतलब वो स्ट्रिंग की औकात नहीं है, स्ट्रिंग टूट गया, सर्कल गायब हो गया, मतलब अभी आप कोई बात नहीं कर सकते। मैं टोटली 7 4 28 चीजें पूछ रहा हूं। ओके, 7 4 28। शुरू करें? 3 2 1 स्टार्ट। दो जन होंगे तो कम थकेगा ना। वेरी गुड। थीटा से शुरू करते हैं। 0, 90, 180, 90। एनीथिंग, क्या बोलने का? एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 180। बोलो। 0, 90, 180, चार चीजें हो गई। थीटा। अभी हाइट। 0, R, 2R, 4 और 4 8 हो गया। काइनेटिक एनर्जी 5/2 mrg, 3/2 mrg, 1/2 mrg, something between 5/2 and 1/2 mrg तो ऑफ कोर्स कॉमन, राइट? mg नहीं बोलने का, mrg बोलने। कितना हो गया? 4 3 12। काइनेटिक एनर्जी बोला अभी मैंने। पोटेंशियल एनर्जी 0 mg 2 mg 0 and 2 mg, anything between 0 and maximum। 4 4 16, बराबर ना? टोटल एनर्जी 4 5 20। वेलोसिटी can I say greater than or equal to √5rg will be more sensible, because इधर √5rg मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। ज्यादा होगा चाल से, कम होगा पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट सर्कल। बैंकिंग ऑफ रोड्स में, अनबैंक रोड में, बैंक रोड विद फ्रिक्शन में हम लोग मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की बात कर रहे थे, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाने का, स्वीट ज्यादा नहीं खाने का, डायबिटीज होता है, सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना था, बीपी बढ़ता है। आर यू गेटिंग मी? इधर कम नहीं जाने का, मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 पास होने के लिए। 34 नहीं चलेगा, 36 चलेगा, 37 चलेगा, 45 चलेगा, 50 चलेगा, 65 चलेगा, 95 चलेगा, 99 चलेगा, 100 चलेगा, 101 पॉसिबल नहीं है। समझा? मतलब वर्टिकल सर्कल में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम वेलोसिटी की मैक्सिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग दिस? व्हाट इज वेलोसिटी हियर? मिनिमम √5rg, मिनिमम √3rg, मिनिमम √3rg, मिनिमम। समझा बेटा? टेंशन का मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन, और इसको जनरल वे में याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? cos थीटा के साथ बोलने का। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टेंशन? mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। mv² upon r plus mg cos 0। Therefore mv² upon r plus mg, because cos θ is 1। mv² upon r plus mg cos 180। Therefore mv² upon r minus mg। very good। mv² upon r plus mg cos 90। Therefore mv² upon r plus mv² upon r, because cos 90 is 0। समझा बेटा? अभी मुझे वैल्यू चाहिए, वैल्यू। ये इक्वेशन था। मिनिमम, मिनिमम बेटा, क्योंकि ये 7 mg चलेगा मिनिमम। जैसे आप वेलोसिटी मिनिमम बोलते हो ना, वैसे टेंशन भी मिनिमम बोलने का। वन बेटा वेलोसिटी के लिए था, √1r। टेंशन के लिए 0। बोलो। अब इसका एक मस्त जनरल इक्वेशन देता हूं, लेकिन ये इक्वेशन से
इक्विलिब्रियम कंडीशन में वैलिड है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टेंशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज 3 mg ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा होल ओनली। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूज कर सकते हैं। चेक करके अपना आंसर आता है कि नहीं। आप लोग लोएस्ट पॉइंट पे हो, आप लोग लोएस्ट पॉइंट पे हो। व्हाट इज कॉस 0? व्हाट इज 1 प्लस 1? 2 into 3 mg, 6 mg. हो लवली। यस और नो? आप लोग हाईएस्ट पॉइंट पे हो। थीटा cos of 180, 1 minus 1, 0. हो लवली। बराबर। आप लोग हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हो। 90. cos 90, 0. anything plus 0, same thing. 1 plus 0 is 1 बराबर है, बट मैंने anything plus 0 पूछा था। anything plus 0, 1 plus 0, 1. वेरी गुड। 3 mg 1 सा आ गया आंसर। एकदम अच्छे से समझा। सोचो, मैंने ऑलमोस्ट 90 मिनट्स बोला है ना, नॉन स्टॉप। एंड दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ वर्टिकल सर्कल। ओपन योर बुक नाउ, ओपन योर बुक नाउ। नाइन्टी मिनट्स में मैंने 2 पेज कवर किया। 90 मिनट्स में, बिकॉज बुक में तो ब्लैक एंड व्हाइट देते हैं, डेप्थ में तो जाते नहीं है। आर यू ऑन पेज नंबर 14 and 15? चुप बैठ फिलहाल, कुछ बोल। आर यू ऑन पेज नंबर 14 and 15? The best way to revise this is पेज नंबर 8। एक ही पेज में, you know how many equations are there? 7 4s are 28 प्लस टेंशन का जनरल इक्वेशन प्लस वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन प्लस पोटेंशियल का जनरल एंड प्लस 32 क्वेश्चंस ऑन वन पेज। 32 questions on one page. Page number 8 of your iPad notes. The bestest way of revising this topic is not the book. Your iPad notes, page number 8. पेज नंबर 9 फिलहाल मत देखना, वो मेमोरी चार्ट है, वो मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। पेज नंबर 8 डेरिवेशन है। सो एक्चुअली स्पीकिंग, शट अप। Actually speaking, you don't need the board work का picture. My page number 8 is much better than the board work. Yes or no? तो आप लोग सिर्फ पेज नंबर 8 पे आ जाओ। iPad notes के नंबरिंग बराबर किया है। पेज नंबर 8 ऑफ योर iPad notes। उधर बुक में ना पेज नंबर 14, 15 जो भी हो टिक कर लो। राइट? वहां पे आपको एक टेबल मिलेगा। किधर? iPad notes में। That table is all in one table. That table is all in one table. Next time बेटा पेज नंबर 8 एकदम अच्छे से रिवाइज करके आना, सुपर एक्स्ट्रा लेवल पे रिवाइज करके आना। बिकॉज नेक्स्ट वीक ऑल्सो आई विल बी मीटिंग यू ट्वाइस अ वीक एट लीस्ट। राइट? ये वीक में मेरा लेक्चर था मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हो सकता है नेक्स्ट वीक में मेरा लेक्चर या तो मंडे वेडनेसडे है या तो मंडे फ्राइडे है, लेकिन मंडे पक्का है। Right? So Sunday, after doing the flag hoisting in your society, no time pass. जो भी है, टाइम पास मत करना 26 जैन के नाम पे। होमवर्क बहुत है ना? लव यू। संडे टेस्ट है ना? केमी बायो है ना? फिजिक्स नहीं है ना? इसलिए फिजिक्स इग्नोर होगा ना? तो संडे आफ्टरनून में फिजिक्स इग्नोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडे हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यूज करने वाले हैं। और अगर ये नहीं आता मतलब भारत माता मुझे कुछ नहीं आता।